के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, but still the concept was not clear in minds of many people, so I thought of giving you this as a homework. So the difference between effective and efficient is that when we say effective, effective का मतलब होता है the best possible decision or the right decision. Out of so many options which are available to you, the most right decision taken is known as the effective decision. जैसे आप अपने करियर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, तो आप आर्ट्स भी इस ऑप्शन में रखेंगे, कॉमर्स भी ऑप्शन में रखेंगे, मैनेजमेंट भी ऑप्शन में रखेंगे, बट according to the opportunities that you are getting, according to the opportunities that you will get after the course, and according to your own personal aptitude, आपका भी अपना मन कहाँ है पढ़ने का और आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये डिसाइड किया कि मैनेजमेंट बीबीएम में एडमिशन लेना इज द इफेक्टिव डिसीजन। यू गॉट इट? इफेक्टिव का मतलब ना, इफेक्टिव तो ले लिया डिसीजन कि बीबीएम करना है, व्हाट आफ्टर दैट? बट यू नीड टू कंप्लीट योर बीबीएम कोर्स विद फुल एफिशिएंसी। मतलब कि आप पढ़ाई इस तरीके से करिए कि आपने जितना सोचा कि मेरे लिए इतनी जो चीजें आपने डिसाइड की कि क्यों इफेक्टिव है बीबीएम, उसके साथ आप जस्टिस कर सकें कि डूइंग थिंग्स राइट, राइट थिंग को आपने चूज कर लिया, अब नाउ डूइंग द थिंग्स राइट, कि आप क्लास में अटेंडेंस में आइए, क्लास में पढ़ाई कीजिए मन से, आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट है तो टीचर से पूछिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल फॉर द इंटरव्यूज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, and when you get a job, then your effective decision will be done efficiently. Difference समझ में आया? Yes, ma'am. बस यही है. The other question was, we'll quickly get into the other question because BCom में ये discuss हो चुका है. What is management arts or science? Both. How many saying both? Ma'am, science provide a principle and art provide art execute. One thing is this, other two. यही क्या बोलना है बताओ, यही क्या बोला? Science is the principle and art execute the principle. ठीक है, पर इसको इलैबोरेट कीजिए थोड़ा सा, एक ही लाइन में नहीं बोल सकते, ये तो बहुत सब्जेक्टिव आंसर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर. We can say art is a management because in the management is art, arts is not management, management is art. Management is art because we decide some work in the basic skills and the practical thinking. ठीक है, at least you said that management is both. See, management is both arts and science. Why we call this art and science? Because despite the fact being very very clear that like science, it has some universally accepted principles. Principles है ना? The 5 functions of management है वो हर जगह 5 functions of management है. This is universally accepted. But are these 5 functions of management performed in the same manner everywhere? No. क्या हर जगह मैनेजमेंट का स्टाइल एक ही है? नहीं है. सबको तो एंड रिजल्ट काम और आउटपुट देना है, लेकिन क्या मैनेजमेंट का स्टाइल सब जगह एक है? नो. If you dig into Indian management style, that is different. Japanese management style is different. French management style is different. American management style is different. जब आप अरेबियंस के, सऊदी अरेबिया के मैनेजमेंट स्टाइल को, अरब कंट्रीज के मैनेजमेंट स्टाइल को देखेंगे, वो डिफरेंट है. So despite the fact that there are principles which are thoroughly accepted all over the world, there's a change in how it is being practiced.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। On the time this Wi-Fi will come and go, and then we have to mute it. So आपने ये सुना है कि नहीं कि कंपनीज कुछ सप्लायर का प्रोडक्ट, ये नहीं सुना होगा आपने, मार्केट की बात सुन होगी। जब कंपनी किसी सप्लायर से अपना रॉ मटेरियल लेती है ना, मान लीजिए कोई नया सप्लायर ट्राई किया या किसी और चीज का प्रोडक्शन करना है आपको जो आप नए चीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एंड योर रॉ मटेरियल इज नॉट अप टू द मार्क, आपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की, आपको ठीक नहीं लगा, आप वहीं से वापस कर दिए। The entire headache of going through the process, the time, the cost is saved. ठीक है, प्रोसेस के टाइम, मान लीजिए रॉ मटेरियल अप्रूव हो गया, अब दवा बन रही है, रॉ मटेरियल अप्रूव हो गया, जब दवा इस तरीके से बनती है तो छोटी छोटी जो दवाएं होती हैं उनका फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, क्योंकि जब बन गई तो वो पटका वटका करके मार्केट से दुकान पे आती है। अब मार्केट में पहुंचने के पहले ही वो भूसा बन जाए तो उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। तो कई बार वो प्रोसेस चलता रहता है, जब ये नॉन कोटेड टैबलेट होती है तो वो वापस क्वालिटी कंट्रोल आती है और उसकी टेस्टिंग होती है, माने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है आपके पेट का, इंटेस्टाइन का, उसका पीएच उतना ही मेंटेन किया जाता है जितना कि नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन का होता है, और वहां पे दवा को 45 मिनट्स तक डिसइंटीग्रेट करके देखा जाता है कि जितना हमें रिक्वायरमेंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट का रिलीज हमारी कंपनी क्लेम कर रही है उतना रिलीज वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? अगर नहीं कर रहा होगा तो हम फिर से उसको चेकिंग के लिए उस प्रोसेस में डालेंगे, तो ये इन प्रोसेस हो गया। स्टिल कंट्रोल के बाद भी आपने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये कंट्रोल के बाहर का है। तो आप इस कंट्रोल के इस पोस्ट प्रोसेस जो कंट्रोल होगा उसका मतलब होगा कि आप उससे सीखेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि आपसे गलती कहां पर हुई है, एंड दिस विल हेल्प यू इन प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। प्लानिंग एंड कंट्रोल दोनों सिमिलर है? सिमिलर नहीं है, साथ साथ चलता है। जैसे हम कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल आउटकम को फाइंड करते हैं, तुम एक एक्चुअल आउटकम को हमेशा फाइंड आउट नहीं करते, कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस आया वो मैच हो रहा है, the desired process is matching with the actual process or not, the desired result is matching the actual process or not, ये भी कंट्रोल में देखो। तुम मैनेजमेंट छोड़ दो, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन से इस चीज को समझो। जब गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करती है वो प्लान कर रही है, ठीक है, पर कंट्रोल मेजर्स भी तो बता रही है, इज कंट्रोल मेजर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग? आप जो टीवी पे रेडियो पे इतनी हर जगह एड सुनते हैं, जो गांव वगैरह में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के भी लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए बताया जा रहा है, इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ प्लानिंग? पहले प्लान किया है कि कंट्रोल किया? प्लान किया, अब वो कंट्रोलिंग भी तो उस प्लान का पार्ट है, नहीं बात? इसीलिए नेक्स्ट, दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑन इंट्रोडक्टरी एचआरएम। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है हम लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटीज, because introductory part हम 3-4 क्लास में ले चुके हैं, understood? Fine. See, today we are going to deal with a very interesting, and I will request you not to miss out on classes of activities, recruitment and selection, because then I'll bring various advertisements and recruitment papers of banks and everything, and then I'll discuss it in class. तो आपको थोड़ा actual समझ में आएगा, खाली किताब से पढ़ने से याद करके बैठ जाते हैं आप लोग, है ना? प्रैक्टिकल समझेंगे तो फिर अपना भी इंटरेस्ट देगा, कुछ देख के समझ लेगा। डस्टर नहीं है, डस्टर नो प्रॉब्लम, जो भी नहीं देखो टॉपिक दीजिए, हाउ HRM has will change fact of HRM वो कंप्लीटली हुआ है, हुआ था स्टार्टिंग का कोचिंग नंबर 1 तक हुआ था, कोचिंग पढ़ के आने बोले थे शायद हम लोग को। स्टाफिंग, राइट?
स्टाफिंग में ग्लोबल एक्विजिशन हो चुका है. You understand the meaning of global acquisition? Because of this globalization thing, there is global acquisition. यानी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से दिल्ली अगर काम करने जाएं तो आपका जो मैनेजर हो वो इस कंट्री का ही नहीं हो. बहुत पॉसिबिलिटी है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी. अगर आप किसी ईसी की कंपनी में काम करने जाते हैं, देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो अपनी कंट्री का हो. दे प्रेफर पीपल मैनेजिंग देयर ओन स्टाइल. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज कोचिंग. नहीं होता है, यू नो, बेनिफिट्स देना बोलो, लुरिंग देम कि उनको तुम इतनी लालच दे दो. मार्केट को स्पॉइल करना भी कर सकते हैं उसको. बिल्कुल स्पॉइल करना, क्योंकि अनएथिकल है. देयर हैव बीन केसेस ऑन डिफरेंट कंपनीज. कुछ कंपनीज ने दूसरी कंपनीज पे केस कर दिया कि हमारे एम्प्लॉइज चुराते हैं. कोचिंग का यही मतलब होता है, ठीक है. दिस इज सो मच इन प्रैक्टिस टुडे एंड एन अनएथिकल थिंग व्हिच इज इन प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशंस टुडे. Okay, now मैं अगर ये तुम्हें अपनी व्यूज से वो कंपनी को छोड़ के जा रहा है तो वो अनएथिकल कंसिडर कैसे वो विल से ही छोड़ के जाता है. तुम लॉ पढ़े हो, बिजनेस लॉ नहीं पढ़े हो, विल से ही छोड़ के जाता है. किसी को कोई जबरदस्ती थोड़ी ना ले जाता है. लेकिन आप अगर किसी को ब्राइब करें, जैसे कि तुम किसी केस में कल्प्रिट हो और तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही दे रहा है या तुम्हारे फेवर में कोई गवाही दे रहा है और तुमने उसको इतना पैसा दे दिया है और बोला नहीं है कि वो रिश्वत है, वो तो खुद ही दबा है ना तुम्हारे एहसान के लिए. वो भी एथिकल अनएथिकल है. तुम एक तरीके से उसको ब्राइब कर रहे हो, राइट? स्पॉइलिंग द मार्केट कल्चर. ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें बिजनेस में देखने को मिलती हैं, जैसे कि रिलायंस इज सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज कॉर्पोरेट कनेक्शन. मतलब यहाँ के जो मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, वो कहीं अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, पहले से ही उनको बता के उनको ही इन्फॉर्म कर देता है कि आपका ये एम्प्लॉय आया इंटरव्यू देने. ओके, सो ये चीजें होती हैं. A person can become an IS officer, such as the eligibility given by government of India. So we are nobody to comment. And somebody from JNU and all, they are like learned people. ये लोग प्रोफेसर्स बनते हैं, IS बनते हैं. मेरे कहने का ये मतलब नहीं. We are focusing just on business. जब बिजनेस में फोकस करते हैं तो हम क्या है, आप लोग सब प्रोफेशनल डिग्री लेके जाएंगे, then you will want a job which is equivalent to your professional degree. 2023 में आप सारे इतने सारे लोग निकलेंगे. सिर्फ पटना के बीबीए और बीकॉम को जोड़ो के कितने निकलेंगे? उसके बाद जोड़ो के पूरे बिहार से 23 में कितने निकलेंगे? फिर जोड़ो के उसी साल पूरे इंडिया से कितने निकलेंगे? और बताओ भीड़ कितनी बड़ी. उसमें 2-3 लोग वैसे भी जोड़ लो, तो 2-3 लोग नहीं, 2-3 साल पुराने जो पास आउट है उनको भी जोड़ लो, जो जॉब के लिए वो भी फाइट कर रहे हैं जॉब के लिए. अब बताइए रश कितना है? रश है. प्लस देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन दोनों का मतलब समझते हैं आप? ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज और व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का मतलब? यस मैम. बताइए. आप ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर? मैम आई थॉट ब्लू कलर तो सिर्फ फिजिकल और मेंटल एफर्ट से जो काम करते हैं वो सही है, गलत नहीं है. थोड़ा बोल रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बोल सीख ही रहे हो. और व्हाइट कॉलर मतलब जो ऑफिशियल वर्क होता है वही. ठीक है, आइडिया है थोड़ा सा. ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज का मतलब होता है, जैसे ये देखा है ट्रेड यूनियन के अंदर जो वर्कर लोग काम करते हैं, वर्कर क्लास, जिसमें की फिजिकल एबिलिटी ज्यादा लगती है. वैसे काम जिसमें की कोई मशीन चलाता है, ऑपरेटर, अनस्किल्ड,
अनस्किल्ड काम Yes, जो ma'am. होगा Unskilled. Yes, ma'am. वो आता है ब्लू कॉलर पे, और ऑफिशियल काम एग्जीक्यूटिव क्लास काम अंडर व्हाइट कॉलर। White collar. हम नहीं कहते कि रेवेन्यू सर्विसेज की नौकरी व्हाइट कॉलर जॉब है एकदम, कहते हैं ना ऐसे कॉमन लैंग्वेज में व्हाइट कॉलर जॉब। उसका क्या मतलब हुआ कि एग्जीक्यूटिव क्लास सी the HRM trend will graduate has shifted, and this trend will shift more from blue collar to white collar employees. Why? Because the level of education is rising. इतने बीबीए आज से 10 साल पहले और बीकॉम निकलते थे क्या, या बीकॉम निकलते भी थे तो नौकरी मिलना इतना मुश्किल नहीं होती थी, है कि नहीं? आप ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे। अच्छा, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय ज्यादा आने का नतीजा, ठीक है, आपने कह दिया कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी पे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? क्यों ये बात कही जा रही है? व्हाई इज दिस इवन अ मैटर ऑफ डिस्कशन? ठीक से बोलो, ठीक बोल सही रहे हो, पर तुमको क्लैरिटी के साथ बोलो, ऐसा हमको भी लगे कि तुमको पहले खुद समझ में आया तब तुम हमको समझा रहे हो। तुम बताओ कि तुम्हारे व्हाइट कॉलर या तुम्हारे ज्यादा पढ़ लिख लेने से वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस आएगा? एम्प्लॉयर को क्यों ये बात किया जा रहा है एचआरएम प्रैक्टिस की? आई एम एन एचआरएम मैनेजर, इमेजिन कि आई एम एन एचआरएम मैनेजर, तुम ज्यादा पढ़ोगे तो उनको अपना मैनेजमेंट का तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्यों? सिंपल सा आंसर है, यू आर थिंकिंग सो मच ऑन दिस। व्हाट? आप एक बात बताइए, आप किसी बैंक में जाते हैं जो वहां पे काम होता है, बैंक पीओ से वैसे ही बात करते हैं जितना कि आप किसी ऑटो पे बैठते हैं उस ऑटो वाले से बात करते हैं, बस यही डिफरेंस है। अब समझ में आया? when you are more educated, when you are more learned, when you have a professional degree, when you have a technical degree, what does that mean? This means you are more knowledgeable. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है आपके अंदर, पर्सन का आपके साथ ट्रीटमेंट चेंज होगा, और मेरा ट्रीटमेंट तुम्हारे साथ चेंज होगा कि नहीं होगा वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एस्पिरेशंस बढ़ जाएगा इन जनरल। क्या होता है? 3 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लीडरशिप स्टाइल भी क्या होती है? पढ़े होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। This is what happens when you are promoted without studying in exams. Autocratic, participative, plays a share. याद है? मैम सिलेबस में का होगा, आगे होगा, अभी आगे पढ़ना है, 3rd ईयर में तुम लोग को पढ़ना है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जो लीडर है वो ऐसे बैठा है। ऑटोक्रेटिक का एग्जांपल से याद रखो, ऑटोक्रेटिक कैसे होता है? इसकी ऑटोक्रेसी चलती है। हिटलर, Adolf Hitler was an autocratic leader. The concentration of power within one With hand. one person, just one person. Line of command is very clear. Concentration. यहाँ पे लीडर बैठा है, बाकी सारे लोग इसके नीचे हैं जी, और लाइन ऑफ कमांड सीधा फ्लो करता है। ये बड़े सेंट्रलाइज हो जाते हैं, सेंट्रलाइज पावर, लेकिन आप डिसेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटिव। इसको आप पढ़े लिखे लोगों के साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या? नो मैम। अब समझ में आ रहा है कि एचआर प्रैक्टिस कैसे चेंज होगी? आप इसको सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर के साथ यूज कर सकते हैं, जो मैनुअल काम करता हो, जिसको ज्यादा दिमाग नहीं होता है, वो फिजिकल काम कर सकता है, लेकिन मेंटली क्वेश्चन करने का या ये व्हेन यू आर लर्निंग यू आर ओनिंग योर स्किल्स, आप सोचते हैं समझते हैं तो क्यों क्या कैसे ये समझ में आता है, तो आप कुछ भी थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। तो ऑटोक्रेसी, इसी देखो ये क्वेश्चन एचआर के इंटरव्यू में हम कई जगह पे पूछा गया है, जब आप फाइनल अपना टेक्निकल राउंड दे लेते हैं उसके बाद पूछता है कि अच्छा यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड दिस अप्लाइज टू कॉमर्स स्टूडेंट्स आल्सो, क्योंकि आप लगभग सेम कंपनीज में बैठते हैं।
उनसे ये बोला जाता है कि अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट स्टाइल, व्हिच काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल डू यू फेवर, क्या बोलेंगे आप उसको? नो, यही पढ़ लेते हो, रट लेते हो गए। Depends upon which kind of people we are leading or managing. जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, देखिए ऑटोक्रेटिक को बहुत नीचे नजर से देखा जाता है अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ट्रेड यूनियन वगैरह का कॉन्सेप्ट आया तो वर्कर्स के राइट्स और इन चीजों की बात होने लगी। लेकिन फिर भी आप बहुत बॉटम लेवल के वर्कर्स को पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कैसे करोगे? नहीं कर सकते। और लेजस फेयरिंग मालूम है कि क्या होता है? लेजस फेयरिंग का मतलब होता है जो जैसे मिडिल एग्जीक्यूटिव जो लोग हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उनको सिर्फ बता दिया जाता है ये काम होना है और आपको करके देना है, उनको ये बताया नहीं जाता है कि ये काम कैसे होना है। तुम किसी प्रोजेक्ट का काम किसी को दे रहे हो और अगर तुम छोड़ रहे हो कि आप अपने तरीके से करिए, काम करके दीजिए, then that employee must be very skilled, उसको एक्सपीरियंस होगा बहुत सारे सालों का, होगा ना, तभी तो आप इस तरीके का लीडरशिप स्टाइल उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि एचआर प्रैक्टिस कैसे चेंज होगी वर्कफोर्स में चेंज आने की वजह से? आप ज्यादा पढ़ेंगे तो किसी की सुप्रीमेसी अनक्वेश्चनड नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपको मालूम है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, बट आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्लस यू विल हैव अ बेटर एस्पिरेशन। आपको जहां अपना करियर प्लानिंग नहीं दिखा, ग्रोथ नहीं दिखेगा, वहां आप क्वेश्चन करेंगे, वहां आप क्विट करने का सोचेंगे, क्योंकि आपके पास स्किल्स है, ऑप्शनलेस तो नहीं है आप। समझ में आई बात? चेंजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात कीजिए, दूसरे पे आइए, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में चेंज होने का मतलब ये भी तो है, वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है कि नहीं? चंदा कोचर, शिखा शर्मा, मिसेस भट्टाचार्य जो एसबीआई की चेयरपर्सन थी, इंदिरा नूरी, हाँ नदी भट्टाचार्य, इंदिरा नूरी, ये चीजें तो हम इसलिए इन विमेन का नाम हम इसलिए जानते हैं बिकॉज दीज आर वेरी फेमस एंड दे कम ऑन टीवी रेगुलरली। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जहां वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ वुमेन है। सो अकॉर्डिंग टू यू, will this bring about a change in the organization or not? आपके हिसाब से कोई increasing workforce of women का कोई change होगा? क्या होगा? और culture, creche, other things, बहुत सारा benefit को डिजाइन किया जाएगा उनके हिसाब से, जैसे उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एचआर को काम करना पड़ेगा कि नहीं उसके तरफ, maternity thing, there are other things also, जैसे कि women participation की अगर आप बात करें, आपने change of trend in advertisement देखा है, कभी नोटिस किया है? पहले कार के एड में कभी women को लिया नहीं जाता था, क्योंकि it was supposed कि कार से उनको क्या लेना देना है, और फिर बाद में चेंज हुआ तो they simply put a model there, उसका भी कोई काम नहीं था, वो just like a showpiece, मॉडल को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था। धीरे धीरे इस चीज का विरोध होने लगा कि आप ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिए एडवर्टाइजमेंट में, व्हाई ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन। नेक्स्ट, अभी आप देखेंगे कि ग्रोइंग ट्रेंड्स में यू विल सी एड्स ऑफ डिफरेंट कार कंपनीज वेयर वुमेन इज ड्राइविंग ऑन हर ओन एंड शी इज ड्रॉपिंग हर चिल्ड्रन टू स्कूल। या एक एड आया, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कार, बट she's a wife and she gifted a car to her husband. वो ad याद नहीं आपको किस कंपनी का? She gifted a car to her husband and her husband said that, did you check all the details? And she said that I have checked all the details on this website. इसका क्या मतलब हुआ कि टेक्निकली भी women को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो सिंगल हैंडेडली कार खरीद ली और अपने हस्बैंड को दे दी। This has a deeper message. This speaks so much about the workforce diversity. क्या हो गया तुमको?
So, and there is one ad of car where a woman is driving the car on mountains. She is going with her girls gang. उसमें men का कहीं कोई जरूरत नहीं है. ये सब बहुत क्लीशेड एडवर्टाइजमेंट था हमारी सोसाइटी का पहले. जैसे घर का कोई सामान है, यानी अगर बर्तन बर्तन का ऐड है तो आप हमेशा देखिएगा कि गृहिणी को आगे बढ़ाया जाता था कि ये उसी का काम है. अब बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि पार्टिसिपेशन दिखाया जा रहा है. Why? ये बहुत डीप मैसेज देता है. एडवर्टाइजिंग इज वेरी डीप थिंग. You see it over and again, the perception gets reinforced. आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ये लॉ से चेंज होगा? No, the perception, the mindset has to change, and this is because there is increasing participation of women in the workforce. ठीक है? तो ये चीजें चेंज हुई वर्कफोर्स women की वजह से. Now educated and uneducated. Now ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आज भी सारे पीएसयूज में गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है. एससी, एसटी, ओबीसी कमीशंस होता है, कमिटी वगैरह. इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है. देखिए, हम चाहे कितना भी बैठ के यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर लें, हम जितनी बातें किए, ये दिस हैज चेंज्ड ओवर डेकेड्स. वुमेन का वर्कफोर्स में आना, दिस इज नॉट ऑल ऑफ द सडन ओवरनाइट. दिस चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट वेरी ग्रेजुअली. अभी भी कई जगह पे आप ये देखेंगे कि जो ऑप्रेस्ड क्लास है उसके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या उनके साथ बोल के एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, उनके साथ उस तरीके से मिसबिहेव कि आपको हमेशा कोई बोल रहा था कि मैं तुमको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. नो, they will make things, they will talk the way, they will do something, they will allot you the work, or they will start exploiting you, and then you feel harassed. Then what will you do? Then you go to these commissions for that help. Inquiry बैठती है, देखा जाता है, चार्ज लगाया जाता है, तो उस पे डिस्कशन होता है, and then a final result is there. Organizations में हम इतनी workforce diversity की बात करने as if women is so empowered. No, the harassment still continues at workplace, and this is a major problem. ठीक है? Anti-Sexual Harassment Act 2013 पास हुआ है, और आए दिन आपको women harassment के cases न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेंगे, इतना सब कुछ होने के बावजूद. And वो कोई गांव में काम करती है? No, she is working with educated people, और still ये होता है. तो mindset has to go along the way to change. इसीलिए कई जगह पे कई organizations time to time gender sensitization पे प्रोग्राम कराते रहते हैं. ट्रेनर आते हैं, एक सप्ताह के लगभग का वर्कशॉप होता है, या 3 दिन 4 दिन का. जेंडर सेंसिटाइजेशन माने you be sensitive towards opposite gender, you accept them as a workforce equal. Acceptance ही तो नहीं है सोसाइटी में. Despite everything, there's no acceptance. So gender sensitization का वो बड़ी कंपनी जैसे कोल इंडिया, ओएनजीसी ये सब करवाती है gender sensitization का कोर्स. क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी चेंज हो रही है, और अगर हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट बताइए, जल्दी बताओ, आज खत्म करेंगे. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अच्छा, टेल मी, एलपीजी के बाद क्या ये इतना ज्यादा ऑनलाइन, अब हम ये देखें ना कि चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर इवन इफ आई एज अ टीचर वांट टू enhance my skill, I can pay to a course and I can do that course for certification program for 3 months or 1 month or anything, and I can enhance my skills. No mediator required, I'll straight away pay. There are so many coaching, there are so many online things being done. ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ये जो ट्रेनिंग हो रही है, वर्कशॉप हो रहा है, सब तो ऑनलाइन ही हो रहा है ना, सब ऑनलाइन हो रहा है. You're not going to any IIT. This is the result of change of. तो HRM प्रैक्टिस कैसे चेंज होगी? आप वर्कर को इक्विप करेंगे तब ना वो ट्रेनिंग के लायक बनेगा. तो कुछ आप सोच रहे
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। पीपीटी देखो, पीपीटी वगैरह जो है ना वो अभी तुम लोग को बहुत कॉमन लगता है कि पीपीटी बना के ही क्लास में तुम लोग अपना देते हो प्रेजेंटेशन वगैरह। पीपीटी वाज नॉट दिस कॉमन, ये सब कॉन्सेप्ट था। आज तुमको बहुत कॉमन लग रहा है, कल हो सकता है पीपीटी से कुछ बेहतर आ जाए, तुम्हारा अगला जनरेशन उसको कर रहा हो। दैट विल बी न्यू फॉर यू, यू विल हैव टू लर्न दैट। नेक्स्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट बोलो। Compensation तो हम तुम लोगों को पेरोल में पढ़ा दिए। I've taught you कि for an organization to be enough competitive and to hire and retain competent HR, you need to provide better compensation. आप compensation नहीं देंगे तो employee ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। Next, personal services. Personal services माने जो फैसिलिटी आपको पर्सनल रूप में टच करती है। पर्सनल सर्विसेज में बहुत वाइड रेंज आता है, जैसे कि पर्सनल सर्विसेज में ऑफिस का वो भी आता है कि आप ऐसा एनवायरनमेंट बना करके रखिए कि एम्प्लॉइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्रेज की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, बेनिफिट्स की फैसिलिटी, ये सब पर्सनल सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट, बोलो। Restructuring. See, sometimes restructuring of organization has to be done. Restructure का मतलब दोबारा से स्ट्रक्चर करना। ये डिपेंड करता है, मान लो मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना है। यूज करना है तो प्रेजेंट स्किल्स पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो नए स्किल पे काम नहीं कर सकते हैं, उनको तो रिस्ट्रक्चर करना होगा ना। उतने मैन पावर का हम क्या करेंगे, उनको या तो हटाया जाएगा या फिर किसी दूसरे काम पे लगाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, राइट। रिस्ट्रक्चरिंग और भी तरीके से होता है, जब धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करेंगे तब डाउनसाइजिंग, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और भी बहुत सारी चीजें होती है। We're done with impact of LPG on HRM. In the next class, we will do how HRM has or will change and what are the measures to cope up with that. Details आपको नहीं पढ़ना है, बस हम वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि आप वर्ड सुने तो ऐसे कोई फॉरेन वर्ड ना लगे आपको।